علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہم سب اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقوں کا تو ہے ایمان کے ساتھ زندہ ہے، توحید و رسالت کی دنیا میں آباد ہے۔ جگہ کوئی بھی ہو، زمین کوئی بھی ہو، خدا کی بارگاہ میں ایمان معتبر ہے۔ اگر آپ مومن ہیں، دنیا کے کسی خطے میں ہیں، کامیاب ہیں، اور اگر ایمان والے نہیں تو آپ پاک زمین عرب میں بھی ہیں تو ناکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 12 کی فرسٹ آیت کریمہ میں دو چیز کا بالخصوص ذکر فرمایا، بلکہ تین چیز کا، کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والی، دیکھنے والی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ سب کو وہ رزق دیتا ہے، الا علی اللہ رزقها، اللہ ہی پر ہے ہر مخلوق، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کا رزق۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہی جانتا ہے کہ کون کہاں کس کو آباد کرنا ہے، جائے قرار، جائے سکونت، قیام پذیری، وہی جانتا ہے کہ کس کو ہم کس ملک میں، ملک کے کس شہر میں، شہر کے کس گاؤں میں، گاؤں کے کس محلے میں، کس خطے میں، کس جگہ میں، کس زمین پر آباد کرنا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہی جانتا ہے کہ کس کو ہم کہاں موت دینا ہے۔ یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور یہی پیمانہ توحید ہی ہمیں مستحکم اور ٹھوس بناتا ہے کہ ہمارے لیے زمین معتبر نہیں ہے، توحید معتبر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ ہم سب جب حج کو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب کرے، جو گئے ہیں بار بار نصیب کرے، جو نہیں گئے ہیں ایک بار ضرور نصیب کرے۔ تو جو کوئی وہاں انتقال کر جاتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور جنت المعلیٰ یا جنت البقیع میں دفن ہونے کو فخر سمجھتے ہیں۔ مطلب یہی ہوا کہ ایمان والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں موت پر ایمان ہو اور خطہ مبارک ملے۔ اللہ تعالیٰ ہندوستان کی سرزمین ہم سب کے لیے انتخاب فرمایا۔ اس انتخاب الہی کی بنیاد پر ہم بھارت کو پسند کرتے ہیں اور ہندوستان سے ہمیں پیار ہے۔ کسی خریدنے یا کسی ذاتی، ظاہری، مجازی ملکیت کی بنیاد پر ملک سے پیار نہیں، بلکہ خدا کے انتخاب کی بنیاد پر ملک سے پیار ہے، کہ اللہ نے ہی ہمیں چاہا کہ ہم یہاں آباد ہوں۔ اس انتخاب الہی کی بنیاد پر ہم
तमाम बिरादरान वतन को 19वां यौम आज़ादी बरकत की दुआ के साथ मुबारक कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि सुनो, आज़ादी पाकिस्तान से नहीं अंग्रेजों से मिली है, इसलिए इस मौके पर आप अपनी आज़ादी की हकीकत को समझिए, अपनी भावना में इस तरह मत बह जाइए कि आज़ादी मिली हो किसी और से और गाली गलौज करें किसी और को, ये आपकी हकीकत नहीं है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज़ादी में इत्तेहाद का पैमाना है, इसमें हर एक बिरादरी वतन ने हिस्सा लिया है, जिसका साफ मतलब होता है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी वजह से सेकुलर ये मुल्क कहलाता है। सेकुलर का मतलब ही ये होता है इसमें हर मजहब के लोग रहते हैं और हर मजहब के लोग को रहने का पूरी आजादी है। अगर ये फिक्र नहीं है तो आप कितना भी झंडा लहरा लीजिए, कितनी भी चीख पुकार कर लीजिए, ये हकीकत में रूह आजादी नहीं और आजादी की रूहानियत से पाक है, ये बेकार है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तो एक मुल्की सतह की बात थी। दूसरी बात फिर मैं सफर के आखिरी चहारशंबे पर आऊंगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने कह दिया, इसलिए जो लोग आज मुसलमानों का भी हिस्सा है, ये भी का लफ्ज क्यों बोलते हैं, सबका हिस्सा है। आज अगर कुछ मुल्क को जरूरत पड़े तो हम आज, उस वक्त जितने भी मुल्क के लोग थे सब लोगों ने हिस्सा लिया, और जिन लोगों ने नहीं लिया आज सबसे ज्यादा वो दावा कर रहे हैं कि ये मुल्क मेरा है सबसे ज्यादा दावा कर रहे हैं कि मुल्क मेरा है। नहीं, ये मुल्क किसी का नहीं है, मुल्क तो अल्लाह ही का है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। तुम जमीन के लिए मुल्क की बात कर रहे हो, आसमानों का भी मालिक अल्लाह ही है, जमीनों का भी मालिक अल्लाह ही है। वो जुमला ध्यान में रखिएगा कि भारत से प्यार इंतखाबे इलाही की बुनियाद पर है कि अल्लाह ने हमें मुंतखब फरमाया और यहाँ पैदा फरमाया, और हमने उसका रेफरेंस पारा नंबर 12 की फर्स्ट आयत करीमा में दिया कि वही जानता है कि हम कहाँ रिज़्क पाएंगे और कहाँ आबाद होंगे और कहाँ दफन होंगे। इसका मतलब हम भारत की सरजमीन पर हैं तो अल्लाह के इंतखाब से है, उसके सिलेक्शन से है। अल्लाह ताला हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। हालात की बुनियाद पर और नापाक सियासत के हवाले मत जाइए आप। और मैं तो साफ कहता हूं, जो आप सुनते भी आए हैं, कि सोशल मीडिया के जरिए से आप खुद को बर्बाद न कीजिए। ये सोशल मीडिया वक्त तो याद रखेगा इन्हें भी, क्योंकि मौत पर तो सबको यकीन है, एक न एक दिन आना है। लेकिन वो मौत दो तरह से इंसान को याद रखती है। अगर आपका किरदार अच्छा है तो याद रखती है, किरदार बुरा है तब भी याद रखती है। आज आप जरा गौर कीजिए, अभी ही से हम सब इंतजार कर रहे हैं मिलादुन नबी का, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्यों, मतलब अट्रैक्ट है, क्यों हम सब एक ज़हनी खाका बना रहे हैं कि हमें ये पहलू पेश करना, वो पहलू पेश करना है, ये देखना है, वो देखना। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हैं ऐसे कि उनके हवाले से इस तरह अट्रैक्शन हो, इस तरह तवज्जो हो। आप कभी भी देखे होंगे क्या जलसाए अबू जहल हुआ है? हालांकि बताऊं आपको, अबू जहल वादी अरब का सरदार था, सैयदुल वादी था उसका लक़ब, वादी अरब का सरदार था। लेकिन एक भी ऐसा उन्हीं अरब वालों में से किसी को बता दीजिए कि उसने पेंशन किया हो, नहीं किया। तो आप वक्ती तौर पर तसल्लुत और सालिमाना हरकत को आप दूसरों पर मुसल्लत कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए मिट जाएंगे। लेकिन आज घर घर में यार जलसे हुसैन होता है, घर घर में हो, कहीं नहीं देखेंगे जलसे यजीद। तो ऐसे किरदार पेश कीजिए कि आप हम सब भी चाहें तो लोग हसरतों से 10 उंगली उठाकर दुआ करें, एक उंगली तक उठाए। ऐसा किरदार पेश किया। आज भी हम में कुछ ऐसे लोग हैं जो घर के हैं, लेकिन वही घर का भेदी लंका ढाए, घर के हैं, घर के खिलाफ बोलते हैं।
گھر کی غیبت کرتے ہیں, گھر کی سازش کرتے ہیں, گھر کے خلاف بولتے ہیں. کیسے ہو آپ؟ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں, ایک باپ اگر اپنے بیٹے کی شکایت کرتا ہے اس طرح کہہ کر دوسرے کو کہ آپ ذرا سمجھائیے, اور وہ بالکل نہ تو بڑا عالم ہے نہ کوئی متقی پرہیزگار ہے, تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. آپ کیوں نہیں بیٹے سے بات کریں گے, دوسرے سے کیوں کہیں گے؟ آپ کیا بتاؤں, نافرمان ہو گیا. ارے فرما برداری کا درس کہاں دیا آپ نے؟ فرما برداری کا درس دیا آپ نے؟ نہ خود دیا نہ فرما برداری کے لیے. میں تو کہتا ہوں انگریزی اتنی اچھی آپ کو آتی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں. ہاں ہمارے پاس بھی بڑے بڑے لوگ آتے پڑھے, اتنی اچھی آتی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں, اور عربی اتنی بھی نہیں آتی کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے. یہ المیہ ہے. اور پھر فخر کرتے ہو آپ, غسل جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم اور فخر کرتے ہو آپ. یہ فخر جو ہے یہ وقت کی چیزیں ہیں, ان چیزوں سے بچیے آپ, حالات کو سمجھیے, وقتی سیاست کی رساکشی میں آپ نہ جائیے, توحید و سنت کے حوالے سے زندگی گزاریے. جب کم تھے تو رب کی مدد تھی, آج کثرت سے وہ کیوں نہیں مدد کر رہی ہے؟ چونکہ کم تھے اور اٹریکٹ تھے, کم تھے اللہ کی طرف متوجہ تھے. اسی لیے چرند پرند بہت یہاں تک کہ شیر بھی ادب کرتا تھا. حضرت سفینہ بڑے جلیل قدر صاحب نے, بڑے جلیل قدر, ایک مرتبہ اسی جنگل میں چلے گئے, سارے صحابہ کے ساتھ ضرورت پیش آئی ہوگی, چلے گئے. سارے صحابہ رکو اس طرح کر رہے تھے, چلے گئے. اب سارے صحابہ گئے, آج تو سفینہ گیا, سب لوگ کیا کرنا کیسا کرنا دیکھتے ہیں, کچھ دیر انتظار کرتے ہیں. جب ادھر سے آ رہے ہیں تو شیر پر بیٹھ کر آ رہے ہیں. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, شیر پر بیٹھ کر آ رہے ہیں اور شیر کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے منہ کو ان کے پاؤں کو چاٹ رہا ہے. اب اس سے پہلے کہ وہ جتنے صحابہ ہیں دیکھ کر یہ کیا ہوا کیسا ہوا, تو حضرت سفینہ کہتے رک جاؤ رک جاؤ, مت بھاگو. ارے مجھے دیکھ رہا, میں اکیلا ہوں, تم اتنے ہو کر کیوں بھاگ رہے؟ چلے آئے. آنے کے بعد سب کھڑے ہو کر پوچھ رہے سے ماجرا بتا دو کیا بات ہے. کہا کہ جب شیر میری طرف بھاگا میں نے اوپر چہرہ کیا بس. تو گویا شیر نے اپنے اندر سے آواز دی کہ جس کا خالق, جو خالق اس کا ہے وہی خالق میرا ہے, اور سب کو کہا کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. یہ توحید کا اسٹار نے شیر کو بھی دھکا دیا. خواب کی مکھی سے ڈر رہے ہو نہیں. اس لیے آج جو سیاست نے آپ کو ہم کو ایک لپیٹ میں لے لیا ہے, اس سے نکلیے, اس سے نکلیے. آپ تکلیف ہو خدا کے پاس جھکیے, آپ پریشانی ہو خدا کے پاس جھکیے. اور یہ میں نہیں, یہی ہے طریقہ صحابہ, یہی ہے طریقہ بزرگان. جب بھی کوئی تکلیف, پانی نہیں پڑتا دیکھیے, بارش نہیں ہوتی دیکھیے, ضرورت مال کا مسئلہ ہو دیکھیے, جن بھی چیزوں کی ضرورت پیش آئی آپ نے کبھی بھی انویسٹ کرنے کے ذریعے نہیں بتایا. فرمایا اچھے سے وضو کرو, 2 رکعت نماز پڑھو. جھکایا اللہ کی بارگاہ میں, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. جب بے جان کو وہ رزق دینے پر قادر ہے تو اشرف المخلوقات کو وہ رزق کیوں نہیں دے رہا ہے, اس پر سوچنا چاہیے. یہ سوچنے کی چیز ہے, یہ چیخنے کی چیز نہیں, یہ شکایت کی چیز نہیں ہے. ہم اتنا کرتے ہیں, مہتا پڑھتے ہیں, یہ کرتے, نہیں نہیں نہیں, یہ سوچنے کی چیز ہے. بس سب کچھ جب صحیح ہے تو کیوں نہیں, اس کا مطلب کمی ہم میں ہے. ایک موبائل ریپیئر سے پوچھو جا کے, سب ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد جب چالو نہیں ہوتا تو وہ جا کے باہر نہیں بولتا میں تو کرا ٹھیک نہیں ہوا, نہیں, پھر سے کھول کے دیکھتا, پھر سے کوشش کرتا. کہیں کو نہیں ہو رہا, جاؤ ذرا بعد میں پھر دیکھتے وغیرہ. کہنا یہ ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہو, اس لیول کو سمجھیے, اس اسٹیٹس کو سمجھیے. بہت 1 گھنٹہ 40 سے 45 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے. آپ سنیے نہیں, میں ایک دم اس کا اینالائز کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا.
تو झूठों ने झूठ से कहा है कि झूठ मत बोलो। हमें नहीं तस्लीम है किसी भी चीज कुफ्र, बातिल, किज्ब, शिर्क के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, रसूल के खिलाफ। लेकिन ये मतलब ये नहीं है कि हम तुझे मारेंगे, हम कत्ल करेंगे, नहीं, हम खुदा परस्त हैं। इसलिए जुमला और सुन लो आज, वतन परस्त अपने आप को न बोलना, मुहिब्बे वतन आप बोलो। परस्तिश सिर्फ अल्लाह की होती है, पूजा सिर्फ अल्लाह की, इबादत सिर्फ अल्लाह। जो लोग कहते हैं ना हम परिस्तारे वतन, नहीं नहीं नहीं, परिस्तारे वतन नहीं हुआ, मुहिब्बाने वतन हुआ। आप मोहब्बत करते हैं वतन से, इबादत खुदा की, मोहब्बत वतन की। मोहब्बत आप कर सकते हैं, इबादत नहीं कर सकते। आप देखें जनगणना पढ़ते हैं, उसमें हम लोग क्यों वादे कर रहे हैं इन बातों को। उसमें एक लफ्ज है भाग्य विधाता, यह शिरकिया जुमला है, क्योंकि भाग बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है। इन चीजों से समझिए, तालीम हासिल करना ये जायज है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना जायज नहीं। इस बात को समझिए। जैसे लहमल खिंजीर कुरान पाक में है, अब हासिल कीजिए, खाइए मत। अब तालीम हासिल कीजिए, लहमल खिंजीर का तालीम हासिल कीजिए, लहमल खिंजीर खाइए मत। तो कुरान पाक में गलत चीज का इल्म मौजूद है, इसका हासिल करना आप पर लाजिम है, इस्तेमाल करना लाजिम नहीं है। मुर्दार कुरान में है, अल्लाह के अलावा नाम लिया जाने वाला ज़बीहा कुरान में है, लेकिन ये सब हराम है। आप इल्म हासिल कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात को समझिए। ऐसे ही आप बिल्कुल अपने वतन के लिए हम जान देने को तैयार है, और दिया खैराबादी ने 33 उलमाए हक ने अपनी जान कुर्बान की है। आज देख लो इंडिया गेट पे हमारे नाम मौजूद है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यही एंड है। अगर उन हजरात ने खात्मा बिल खैर उनका हुआ रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु, तो वतन के लिए जान कुर्बान है, ईमान कुर्बान नहीं है। और ईमान की कुर्बानी यह कि आप जो है भाग्य विधाता इन्हें मानने लगे और परिस्तार अपने आप को कहने लगे। माता का जो उन्वान है उनके पास, ये सब आपका तसव्वुर नहीं है। और ये फंडामेंटल राइट्स है, रिलीजन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको आजादी है, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है। आजादी का मतलब ही जमहूरियत था, सभी का खून था इसमें शामिल। और ये आपको इजाजत मिली है कि हर मजहब के लोग आजादी से अपने मजहब पर अमल करते हुए रह सकते हैं। इसलिए आप इल्म हासिल कीजिए, हकीकत से करीब होइए और उन लोगों को पहचानिए जो आप ही के अंदर मौजूद होकर आपकी मुखबिरी करते हैं निगेटिव, आपके खिलाफ जाते हैं निगेटिव। कल भी आजादी के वक्त इस तरह के लोग थे और आज सबसे ज्यादा दावेदार वही अपने आप को कहला रहे हैं। इंशाअल्लाह एक दिन वक्त देखेगा, हालात बदलेंगे, इनकलाब आएगा, चेंजिंग करवटें लेंगी और आप अपनी आंखों से न सही नस्लें जरूर देखेंगी। क्यों? अल्लाह पाक खुद फरमाता तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। आज अगर तुम्हारे दिन हैं, ये मैंने दिए हैं अपनों के किरदारे बद की बुनियाद पर। इंशाअल्लाह इन्हीं में से कोई अच्छा होगा, उसकी वजह से हम इन्हें भी देंगे। अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून, ये जमीन मेरी है और इसका वारिस मैं सालिह बंदे को बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह का वादा है ईमान वालों से और नेक अमल करने वालों से, चीख पुकार करने वाले, नेक अमल करने वालों से कि लोगों ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, हम जमीन में तुझे अपना जानशीन, अपना खलीफा तुम्हें हम बनाएंगे। ये जमीन की खिलाफत तुम्हें मिली है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। जमीन का खलीफा कौन था? वो आदम। और आप आदमी हो, सही वारिस आप ही हो। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला। ये एक हिस्सा हुआ 5 मिनट, बड़ा खूबसूरत हिस्सा सुनिए, फिर 5 मिनट जो है आपके चार शंबा पे भी आ जाता है। बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई। आपको
चीख बोल। देखिए कभी कभी ये होता है, बात सच्ची होती है, अंदाज अगर सही ना हो ना तो सच्ची बात की गड़बड़ा जाती है। बात एकदम परफेक्ट बात हुई, एकदम परफेक्ट बात, तो इसको जरा बोलने का भी, एक्सप्लेन करने का भी तरीका सही रखें। अब देखिए एक और आयत जरा पेश कर दूं ताकि इस पर और आखिरी बात हो जाए। सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 7-8 में आप देखेंगे कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। सुभान अल्लाह। अब मिनारती तुम तो जो बोलना है बोलो, हम तो ये देखते हैं कि मेरा रब मुझे क्या कह रहा है। सुभान अल्लाह। क्योंकि तुम बोलोगे दलील नहीं होगी, खुदा बोलेगा सनद बन जाएगी, सनद बन जाएगी। तो खुदा क्या कह रहा है हमें, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस। जमीन के झगड़ों में पड़ने वालों, ईमान लाओ, नेक अमल लाओ, खात्मा बिल खैर हो, ले जाओ बाहर, ले जाओ जन्नतें। ये अल्लाह पाक की तरफ से। और ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह से बड़ा कोई सच्चा नहीं, कोई सच्चा नहीं, उसके कलमात बदल नहीं सकते। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ वो आयत जरा सुन लीजिए। अल्लाह ताला, और खास तौर से नौजवानों, आज जो हालात देख रहे हो मॉब लिंचिंग की और दीगर इन चीजों की, ये आपके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। और जब तक बिहार का इलेक्शन नहीं हो जाता ये ऐसा होता रहेगा। आप सतर्क रहो, बाखबर रहो, खूब कसरते नवाफिल करो, कसम खुदा की। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो, कसरते नवाफिल करो, और आपको आप जल्दी से दुरूद की कसरत करो। 1500वां मिलाद है, कम से कम 15,000 तो पेश करो। लाख में हो जाए तो सुभान अल्लाह, नबी कहेंगे और करो, पूरी उम्र करो और करो, नबी कहेंगे। नबी ने ऐन का जुमला नहीं कहा, और करते चले जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर है। हजरत काब बिन मालिक की रिवायत है, मेरी वो किताब दुरूद वाली, उसमें ये जिक्र है। बहरहाल तो ये कीजिए आप, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या देख रहे हैं, कई को करे, और फेसबुक पर जो है आंख वाला आप पेश कर दिए, बताता हूं। अच्छा वो आ गए लाठी लेके तो भाग जाएंगे, बताता हूं, फेसबुक पर बताता हूं। सजदे में बताइए, आंसू गिराकर बताइए। इंशाअल्लाह ये आंसू यहां गिरेगा और इसकी ताकत वहां देखी जाएगी, वहां देखी जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की तरफ माइल हो जाओ, अल्लाह की तरफ झुक जाओ। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 15, इसीलिए मैंने तिलावत किया, आगे बताता हूं। वो आयत सुनिए, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फिद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। आयत नंबर 9 या 8, सूरह मुम्तहिना पारा नंबर 28 में, 3rd सूरह है, 5th सूरह में फरमाता, ए मुसलमानों, मैं तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन काफिरों के साथ रवादारी रखो। जुमला समझ रहे आप, रवादारी समझे आप, पॉजिटिव रहो। किन काफिरों के साथ, लम युक़ातिलूकुम, जो कुफ्फार तुम्हें मारने काटने की बात ना करे, जो अमन और शांति से रहना चाहे देश में, जो अमन और शांति से रहना चाहे मुल्क में, जो अमन और शांति से रहना चाहे मोहल्ले में, ऐसे काफिर के साथ रवादारी से पेश आओ। ऐसे का वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम, और जो निकालने की बात ना करे, चले जाओ, तुमको तो दे दिया। ऐसा लग रहा है कि पूरी जमीन का मालिक वही है, पूरी जमीन की रजिस्ट्री उन्हीं के पास है, ये दे दिया। दे दिया का मतलब क्या हुआ, किसने दिया है? ये आजादी और डिवाइड का जो उन्वान है, ये आजादी और डिवाइड एक सियासतदानों का उन्वान है। ये जमीन हमें रब ने अता की है। हम जहां पैदा होते हैं अल्लाह की मशीयत से पैदा होते हैं, और जहां रहते हैं वो भी अल्लाह की मशीयत है। दे दिया का मतलब क्या हुआ, गलत है तसव्वुर, इन चीजों को समझिए। रब कहता है मोमिनो, मुसलमानों, ऐसे काफिरों से तुम नहीं लड़ना, ऐसे काफिरों से रवादारी करना, ऐसे काफिरों से पॉजिटिव रहना, जो लड़ने की बात ना करता हो, जो प्यार मोहब्बत की बात करता हो, जो अमन शांति की बात करता हो, ऐसों से तुम रवादार रहो। अन तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अगर ऐसे काफिरों से तुम रवादार रहोगे तो मैं तुम्हें महबूब बना दूंगा। आप ये लफ्ज पर गौर कीजिए जाकर, इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ऐसे नेकी और रवादारी करने वालों को महबूब रखता है। यह है हमारा मजहब इस्लाम। बहुत पेश किया तुमने कि कत्ल की इजाजत देता है, मार काटने की इजाजत देता नहीं।
اسلام امن کا مذہب ہے، امن والوں کے ساتھ، اور اسلام ڈیفینس کا بھی مذہب ہے ظالموں کے ساتھ، دہشت گردوں کے